Joining me tonight is Mr. Asaduddin Owaisi, Member of Parliament, President of the AIMIM, and man of the season. Man of the season because the manner in which he has taken on Pakistan in the delegations that have gone to 4 different countries in his statements back home in India. Mr. Asaduddin Owaisi has a fan club that is growing by leaps and bounds, not just in India but across the world. Owaisi Sahab, many congratulations to you. But I want to ask you, what was your personal experience of visiting Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia and Algeria, all Islamic countries, part of the OIC, and taking India's message against Pakistan there? The experience was good. I mean, it was an honor for me to represent my country through this delegation in front of all these 4 countries. This delegation was headed by Jay Panda, who I must thank him for doing exceptionally, discharging his responsibilities in a very well way. And we were quite forceful, we were quite convincing, and we had a lot of clarity when we had put forward the views of India in front of the important leaders which we had met in all these 4 countries. Because one must remember that whether it is Bahrain, Kuwait, Kingdom of Saudi Arabia and Algeria is concerned, they are part of Middle East, North Africa, FATF. So, and earlier also these countries had not objected to Pakistan being included in the FATF grey list. And they have a lot of influence over Pakistan. So we had put forward our views, our position of our country, why we took that action on May the 8th, and subsequently what happened. So, you know, I can very well say that we did our utmost best in putting forward our country's position and with all valid facts which we had at our disposal. And let us hope that our government will take whatever these delegations have done, they will take it to its logical conclusion. Owaisi Sahab, the fact that these are Islamic countries, did that make a difference in the message that you took? Was there acceptability and reception of India's point of view as compared to Pakistan? As far as our delegation was concerned, they were quite receptive. You know, we had some good discussions with them. They were asking us questions about Pakistan, about various other issues, and we were able to give in a more proper way the replies to the questions or to any misconceptions they had. The point you're asking about whether they being a Muslim country, Islamic country, did we face any obstacles or hurdles? No. The reason is that they are also become very practical. They know the geopolitics. Yes, Pakistan wrongly claims to a Muslim country, but they understand how India has been a victim, and they also understand that at one point of time this whole region was facing a grave terror threat from Daesh, before that Al-Qaeda. And terrorism, none of these countries would tolerate terrorism. So in that way, I think so they are one on ensuring that terrorism is eradicated everywhere. ओवैसी साहब, आपने कहा बहुत क्लैरिटी से आपने अपना मैसेज वहां रखा. ये इतनी क्लैरिटी से मैसेज रखना कैसे पॉसिबल हुआ? क्या आपकी ब्रीफिंग्स डिटेल्ड रहीं? सरकार में किसने आपको ब्रीफ किया जाने से पहले? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ वॉइसेस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज हु फील दे हैवंट बीन गिवन मेनी डिटेल्स. तो ये क्लैरिटी और ये डिटेल्स क्या आपको जाने से पहले बताई गई थी, ब्रीफ किया गया था? नहीं, जब हम लोग जाने से पहले जिस दिन हम लोग जा रहे थे, जाने से एक दिन पहले 3 या 4 ग्रुप्स को फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफ किया
तो जब वो बोल रहे थे तो मैं अपने जितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे मैं लिख रहा था। उसके बाद उन्होंने जो हमको नोट दिया जिसमें मेरे ख्याल से कुछ हर कंट्री के बारे में एक बैकग्राउंड नोट था, उसमें लिखा गया ये क्वेश्चंस पूछे, कम से कम मेरे ख्याल से 70-80 पेजेस उसमें थे। तो मैं कोशिश करके उसको पढ़ भी लिया था, याद भी थे, और दूसरा हम फॉलो कर रहे थे दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हमारे हैदराबाद में जो मेरे साथी दोस्त हैं उन्होंने मुझे कुछ प्रिपेयर करके नोट्स दिए थे, वो भी हम लोग पढ़ रहे थे। और फिर श्रृंगला साहब हमारे साथ थे जो एक्स फॉरेन सेक्रेटरी थे, जय पांडा भी काफ़ी नॉलेजेबल है। तो फिर हम लोग जाने से पहले एक मीटिंग कर लेते थे कि भाई ये जिससे हम मिल रहे हैं उनके सामने इस तरह से हमको बताना है, ये पॉइंट्स हैं, उनका बैकग्राउंड ये है, उनका सब वो है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी जो आपको दी गई थी उससे आप सेटिस्फाइड थे? जितनी इंफॉर्मेशन उस फोल्डर में थी, जितनी इंफॉर्मेशन हमको ऑल पार्टी में 2 ऑल पार्टी मीटिंग्स में भी में था, और फिर उसके बाद जो आप मीडिया के ज़रिए से आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो तो इंफॉर्मेशन जो थी पब्लिकली अवेलेबल तो उसको हमने इस्तेमाल किया। और क्या आपका सवाल ये है कि क्या मैं मुतमईन हूँ? तो नहीं। पहलगाम जब पार्लियामेंट शुरू होगा तो जाहिर है हम इस सवाल उठाएंगे कि पहलगाम क्यों हुआ, अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होनी चाहिए। विपक्षी दल, कुछ ऑपोजिशन पार्टीज एक खास स्पेशल सत्र की मांग कर रहे हैं। आपको लगता है एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत है, या अगले महीने वैसे ही पार्लियामेंट सेशन है उसी में चर्चा काफी है? अब तो आज सरकार ने ऐलान कर दिया जुलाई से अगस्त 12 तक पार्लियामेंट सेशन होगा, तो मैं नहीं समझता कि ये लोग स्पेशल सेशन बुलाएंगे। मगर जब मॉनसून सेशन होगा तो हम तो डिमांड करेंगे कि पहलगाम पे डिस्कशन हो, और अगर सरकार कहेगी कि सेंसिटिव टॉपिक है नहीं करा सकते तो हम सरकार को याद दिलाना चाहेंगे आपके प्रोग्राम के जरिए से, आपके चैनल के जरिए से, कि पार्लियामेंट में रूल्स है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये बात की गुंजाइश है कि सेंसिटिव सब्जेक्ट को आप इन कैमरा करवाइए, कोई मीडिया रिपोर्ट ना करे। कुछ नेता कहते हैं कि कितने हिंदुस्तानी जहाज गिरे, फाइटर जेट गिरे, इसका आंकड़ा सार्वजनिक होना चाहिए। आप मानते हैं कि यह समय है उस चीज के लिए? नहीं, अब तो सिंगापुर में IISS के शांग्रीला डायलॉग में CDS ने जो बात कही है वो तो गवर्नमेंट का पोजीशन है, क्योंकि जाहिर है CDS तो ये बात बगैर हुकूमत से, बगैर नरेंद्र मोदी की सरकार से पूछ के तो नहीं कहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि नुकसान हुआ है, मगर ये क्यों हुआ है, और फिर उन्होंने कहा कि बाद में हमने जो हमला किया पाकिस्तान पर उसमें उनके 9 एयर बेसिस को, सिर्फ उनके रनवे को हमने डैमेज किया है, हमारे डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छी तरह काम किए हैं। तो वो तो इन्फॉर्मेशन अब तो पब्लिक रेल में आ चुकी है। तो फिर ये विपक्षी पार्टियां ये बार बार मांगती क्यों हैं, ये मुद्दा उछालती क्यों हैं? तो ये हमारी डेमोक्रेसी है ना मैडम, उनका डेमोक्रेटिक राइट है, वो पूछ सकते हैं। मगर जाहिर है जब पार्लियामेंट होगा तो ये सवाल फिर से उठेगा, तो अब उनको हर पार्टी अपने अपने तरीके से पूछेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत ने और भारत की सेना ने सरेंडर किया ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को? मेरा मानना नहीं, मुझे फख्र है भारत की आर्म फोर्सेस पर, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी हो। ख़ास तौर से जब 9 तारीख की रात में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, JNK के उस बॉर्डर पे क्या क्या पाकिस्तान ने नहीं किया, और हम बहुत हद तक बल्कि हमने कामयाबी हासिल की उस तमाम हमले को रोकने में। अनफॉर्चुनेटली पूंछ में सिविलियंस मारे गए, जिसमें जुड़वा बच्चे थे, एक मस्जिद के इमाम थे। मगर हमको फ़ख्र है उस बात का कि हमारी आर्म फोर्सेस ने इस तरह के पाकिस्तान के अटैक को रिपल्स किया और उनके एयर बेसिस को हमने डैमेज किया। हम चाहते तो हम पूरे उनकी एयर बेस को बर्बाद कर सकते थे, मगर हमने सिर्फ रनवे को बर्बाद किया। तो उनको, जैसा हम लोग हैदराबाद में हैदराबादी स्लैंग में बोलते हैं, हमने उनको एक झलक दिखाया, खाली एक तो झलक हमने दिखाई उनको।
मगर पहलगाम के बारे में तो यकीनन एक पॉइंटेड सवालात पूछे जाने चाहिए और सरकार को सुनना भी चाहिए और जवाब देना चाहिए। ये बात मैं आपकी मानती हूं कि पहलगाम पर सवाल आपके जायज हैं और सरकार को जवाब भी देना चाहिए, लेकिन जब राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, तो ये इशारा किसकी तरफ है? ये सिर्फ हुकूमत की तरफ है या फिर आर्म्ड फोर्सेस को भी नीचा दिखाता है? मैडम, मैंने आर्म फोर्सेस के बारे में आपसे भी कहा। अब ये उन्होंने जो बात कही है, मुझे यकीन है कि उनकी पार्टी के जिम्मेदार लोग उसको सब्सटेंशिएट भी करेंगे या क्या करेंगे, मैं तो नहीं कर सकता। मगर मुझे एक बात की तकलीफ ज़रूर है कि जब हमने सेजेशन ऑफ फायरिंग को रोकने का फैसला पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत पर हमने किया, जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि हम इसको बंद करते हैं, तो हमने कहा ठीक है, मगर उस बात का फैसला हमारे देश के प्रधानमंत्री को या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को देना चाहिए था। देश को मालूम हो रहा है अमेरिका के एक प्रेसिडेंट के ट्वीट की वजह से, तो ये मेरे लिए बड़ी तकलीफदेह बात है। लेकिन उसके बाद ट्रंप ऐसे कई बयान दे चुके हैं और उनके बयान हर बार कुछ मुख्तलिफ होते हैं, अलग अलग से होते हैं। Do you think India's policy should be based on what President Trump says? आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, वो देखिए, जो दिल में है बता दीजिए। नहीं, ऐसा है ना कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं बता नहीं। आपने कभी हाइकू पोएम्स पढ़े? तो ये हाइकू पोएम्स है, ये 6 बार 7 बार बोले जा रहे हैं, तो बोले जा रहे हैं, तो भाई उसको हम रिवर्ट क्यों नहीं करते? रिवर्ट करना जो ठीक है, हमारे एमईए के स्पोक्स पर्सन ने उसको रिवर्ट किया जरूर, मगर पॉलिटिकल लीडरशिप को भी एक मानों में बोलना पड़ेगा कि नहीं, हम आपकी बात नहीं सुने। पाकिस्तान डीजीएमओ ने हमसे बातचीत की। लेकिन आपकी जो डेलीगेशन गई थी उसमें एक महिला नेत्री रेखा शर्मा जी थी। इस बात की बहुत क्रिटिसिज्म हुई है, ट्रोलिंग हुई है कि उन्होंने एक गाना भी गुनगुनाया था। आप क्या मानते हैं कि ये सही था, गलत था? क्योंकि आप भारत का मैसेज लेकर गए थे, वो भी पहलगाम के मैसेकर के बाद, तो गाने की गुंजाइश थी? नहीं, मैं उसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूं, आपके दर्शकों को बता देता हूं, वो फैसला कर लें उसके बाद। पहली बात तो यह कि मैं गाने सुनता हूं ना, मुझे पसंद है, मगर इसका जो बैकग्राउंड ये है कि अल्जीरिया में जो इंडियंस को कोई जानता है ना, तो वहां पर हमको जो हमारे एम्बेसी के स्टाफ ने बताया कि सर, इंडिया को वो लोग एक 1960 का एक पिक्चर है, जाने तू उसका नाम था, वो जाने तू को देखकर वो इंडियंस को देख के बोलते जाने तू, और इंडियंस को देखकर वो पिक्चर के वो गाने गाना शुरू कर देते। तो ऐसा हुआ भी। हम लोग, हमारे डेलीगेशन के लोग कोई मार्केट मीटिंग के बाद रास्ते में जा रहे थे, रुककर बाहर निकलकर, तो उसने एक आदमी ने जाने तू कहकर गाना शुरू कर दिया। तो वो मेरे बाजू बैठी थी, उन्होंने कहा कि मुझे ये लिरिक्स याद है, और उन्होंने उसको पढ़ दिया। तो इसको इस तरीके से देखना कि वो इनसेंसिटिव थी, गो वो बीजेपी के हैं, आइडियोलॉजिकली मैं पसंद नहीं करता हूं, मगर उन्होंने वहां की वो जब वो उन लिरिक्स के को बताया, तो वो जो हमारे होस्ट थे, वो अल्जीरिया के फॉरेन मिनिस्ट्री के, फॉरेन पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के, फॉरेन स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो उनको तमाम ने अपना कैमरा निकाल कर रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया कि भाई ये वो गाना बड़ा मशहूर है अल्जीरिया में, वो पिक्चर वो इंडियंस देखते कि जाने तू बोलते। तो उसका बैकग्राउंड ये है। आप वो कोई उनको कहा नहीं कि आपने, क्या जय पांडा ने नहीं कहा उनको कि आप गाइए। वो मेरे बाजू बैठी थी, उन्होंने एकदम ही उसको वो बोल दिया, मगर इसको ठीक है, वो उसको लोग अपने अपनी नजर से देख रहे हैं, मगर ऐसा नहीं था वो ये जो क्या बोला जा रहा है। ओवैसी साहब, पाकिस्तान पर आपका रुख देश में बहुत बड़े वर्ग को हजम नहीं हो रहा। राइट विंग वाले हैरान हो गए हैं कि जब आपने पाकिस्तान के खिलाफ इतनी कड़ी लाइन ली, उन्हें नालायक बुलाया, वो तस्वीरें भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां दिखाई। लेकिन उससे ज्यादा जो इस वक्त सदमे में हैं वो हैं लेफ्ट विंग वाले, लिबरल विंग वाले लोग।
उन्हें लगता है कि आपने कहीं उनका नैरेटिव पंक्चर कर दिया। आप ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है, इसमें ये जो शॉक वैल्यू इस वक्त चल रहा है, उसे कैसे देखते हैं? देखिए मैडम, कभी आप हैदराबाद आएंगे ना तो मैं आपको हमारे पब्लिक स्कूल हैदराबाद बेगमपेट के मेरे दोस्तों को आपसे मिलाऊंगा, जो हम लोग चड्डी पहनकर क्लास 1 से स्कूल को जाते थे। पाकिस्तान के ताल्लुक से मेरा रवैया शुरू से, बल्कि हमारी पूरी फैमिली का मुख्तलिफ रहा है। और ये जो कुछ मैंने कहा है, ये किसी के एक्रेडिशन के लिए या किसी से वाहवाह हासिल करने के लिए या किसी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, किसी को पंक्चर करने के लिए नहीं कहा हूं। ये मेरे मुल्क का मसला है और मैं उस मुल्क के बारे में बोला हूं जो एक फेल्ड नेशन है, जो बरसों से हमारे वतन में आतंकवादी दहशतगर्दी हरकतें करके यहाँ पर लोगों को कत्ल कर रहा है, मार रहा है। तो अब अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। तो क्या आप वाकई बीजेपी की बी टीम हैं? कुछ लोगों का ये सवाल है। नहीं, मैं भारत का टीम का मेंबर हूं, मैं किसी पार्टी का टीम मेंबर नहीं हूं। अब बार बार अगर इलेक्शन में लड़ रहा हूं, इससे अगर किसी को नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो कन्वीनियंटली आप मेरे को बोलते रहेंगे तो गलत है। तो इसका तो मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि ये लोग जो मुझ पे इल्जाम लगाते वो आ जाए सामने बैठे, एक पूरा लाइव टेलीकास्ट करते हैं कि कैसे आपको नुकसान हुआ बताइए। हाँ, ये आज अगर हम 4 कंट्रीज को गए तो हम भारत के लिए गए, ना नरेंद्र मोदी के लिए गए, ना किसी अपोजिशन लीडर के लिए गए। तो और वही सोच रखकर पूरे एमपीज गए हैं, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। और मैं क्रेडिट दूंगा जय पांडा को। जय पांडा उन तमाम मीटिंग्स में बोलते थे कि वी हैव अ diverse group of MPs who can never be together politically, but we are here to represent our country. These were the exact words of Jay Panda. बहुत सही कह रहे हैं। और do you think this was a good idea for India to send these delegations? Because कुछ लोगों ने तो ये कहा जैसे टेररिस्ट घूम रहे हैं पहलगाम वाले, वैसे ही ये delegations घूम रही हैं। नहीं, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट था मिस्टर जयराम रमेश का। और वो नहीं समझे कि हम लोग क्या कर रहे थे। भाई इतना बैक टू बैक मीटिंग्स थे, और फिर उस मीटिंग से जाने से पहले जय पांडा सबको बुलाकर बात करके, भाई इसमें हमको इनसे मिल रहे हैं, इस तरह बोलना है। उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, मैं हूँ, श्रृंगला साहब हैं। एक कलेक्टिवली रात भर बैठकर बात करना, फिर सुबह जाने से पहले फिर बात करना, फिर जाना, फिर मीटिंग से निकलने के बाद कैसा महसूस हुआ, फिर नेक्स्ट मीटिंग में कैसा करना चाहिए। तो ये कोई सैर व तफरी के लिए नहीं गई, बल्कि मैं तो भारत सरकार से अपील करूंगा कि हमारे जयराम रमेश साहब को नेक्स्ट टाइम को डेलीगेशन का हेड बनाकर भिजाइए, तो शायद उनकी शिकायत दूर हो जाएगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं। बट isn't it sad, क्योंकि सलमान खुर्शीद साहब को खुद कहना पड़ा और उन्होंने कहा it is distressing that people at home are calculating political allegiances because we are out on this tour. Is it so difficult to be patriotic? क्या वाकई इतनी नफरत सी है पार्टियों में? अब सलमान साहब कह रहे हैं तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। आई अरेस्ट माई केस एज अ नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर। मगर तकलीफ मेरे को इस बात की हुई कि कनीमोजी वहां पर है जो आपके साथ है, हमारी बहन सुप्रिया सूले वहां पर है, डेलीगेशन को हेड कर रहे वो लोग। वो तो ऐसा इस तरह से कहना कोई आसान काम नहीं है। जब आप किसी फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स के सामने बैठे हैं, उनको हर चीज मालूम है, वो आप उनको समझा रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को भी पसंद करते हैं, आप उनको बता रहे हैं कि ठीक है आप अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करो ताकि पाकिस्तान अपने टेरर कैंप्स को बंद कर सके, आप उनको बोलिए कि मत करिए। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि सैर व तफरी, काश सैर व तफरी होता तो अच्छा होता।
असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप ये जो इस तरह की आवाजें हैं, इनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हजम नहीं हुआ ये डेलीगेशन का विजिट? नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में। ये सब बड़े लोग हैं और बड़े तो आप भी हैं। मुझे इस बात का मौका मिला। नहीं, अब ये बड़ी पार्टी है, बड़े लोग हैं और 50 साल इनको भारत पर हुकूमत करने का मौका मिला, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ। मगर मुझे इस बात का इत्मीनान है कि मुझे जो मौका मिला, मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे इखलास के साथ, ऑनेस्टी के साथ उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की। ओवैसी साहब, वेल आई जस्ट होप और देश भी उम्मीद करता है कि सभी राजनीतिक दल, all political parties have the same maturity as you have displayed and the same love for India as you have displayed. Thank you very much, Mr. Asaduddin Owaisi, for joining me on the news. Thank you, madam. Shukriya, madam. Thank you.